हेलो, वेलकम टू द अकाउंट्स फैक्ट्री। मैंने नया नाम रखा है द अकाउंट्स फैक्ट्री। ठीक है। क्लास 12 अकाउंट्स का ना एक चैप्टर है, चैप्टर 1 पार्टनरशिप का। +1 तक आप समझ के आए होगे। जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर की। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में फंडामेंटल्स की। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स का, एंड दिस इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत आराम से मैं ना बेसिक्स से समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, सेशन शुरू हुआ है। आराम से आप अगर समझोगे ना, बहुत प्यार से, मध्यम तरीके से, महीन तरीके से सारा समझ आ जाएगा। आई हैव अ बुक, इसमें सारी समराइज्ड है। चलिए, partnership is a relation between persons who have agreed to share profits and losses of business carried on by all or any one of them acting for all. Partners Partners are the persons who have agreed to do the business and share its profits and losses. Partners carrying on the business are collectively known as firm. The name under which the business is carried on is called as firm name. आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अब जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, तो बस अपने आप को ना आपने फर्म एज्यूम करना है या फर्म का अकाउंटेंट एज्यूम करना है। मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, यहाँ से लेके पूरी पार्टनरशिप तक आपको कभी गड़बड़ नहीं मिलेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फर्म एज्यूम करना है या फर्म का अकाउंटेंट एज्यूम करना है। ये 4 डेफिनेशन समझ लो। आप कहोगे सर थ्योरी क्यों करा रहे हो, प्रैक्टिकल कराओ ना, पेपर में तो प्रैक्टिकल आना है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, अगर आप बहुत आराम से मेरे को समझ के चलोगे ना, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दूंगा, बहुत आराम से पार्टनरशिप की थोड़ी सी थ्योरी समझा के मैं आपको ले आऊँगा प्रैक्टिकल पोर्शन पे। Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits and losses of business carried on by all or any one of them acting for all. Partners are those persons who have agreed to do business and share its profits and losses. Firm. Partners carrying on the business are collectively known as firm. The name under which the business is carried on is called firm name. Partnership deed. Partnership deed is a written agreement among the partners detailing the terms and conditions of the partnership. The Indian Partnership Act 1932. It is an act that governs the partnership firm. In case partnership deed is silent on any issue, provisions of the act apply. Capital is the amount in credit of partner's capital account. What is the meaning of capital? Capital means the amount initially invested by the partners in the business is called as capital. आपको पता ही है, is the amount in credit of partner's capital account. It may be contributed by the partners in the firm and or credited by way of his or her share of profit, salary, commission and interest on capital. Capitals of the partners may be fixed or fluctuating. इसका मतलब when the partners are doing the business, partners carrying on the business collectively known as firm, तो पार्टनर्स को भी प्रॉफिट मिलता है फर्म से, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है. Capitals of the partners may be fixed and fluctuating. Fixed capitals. Fixed capitals means that capitals of the partners remain fixed.
and change only with the introduction or withdrawal of capital. When capital accounts are fixed, two accounts for each partner are maintained: capital account and current account. Fluctuating capitals. Fluctuating capitals means that capitals of the partners do not remain fixed but change with each entry. When capitals are fluctuating, only one account is maintained for each partner, capital account. It means when the capitals of the partners are fixed, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होंगी, मतलब चेंज हो सकती हैं, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बन रहा है, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स। Drawings means withdrawal by the partner from the firm in cash or kind for his or her personal use. Profit sharing ratio. Profit sharing ratio is the ratio in which the partners have agreed to share profits and losses of the firm. In the absence of agreement, अगर दो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, it is as provided in the Indian Partnership Act 1932 equally. मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं फर्म में और क्वेश्चन में कोई उनके बीच में नहीं दे रखा रेशियो क्या है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में इक्वली स्प्लिट होगा प्रॉफिट। कैपिटल रेशियो। Capital ratio means the ratio in which the partners shall maintain their capitals of the firm. मतलब जिस रेशियो में पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उसे हम बोलेंगे कैपिटल रेशियो। लेट अस अज्यूम दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए ने लगाए हैं फर्म में 2 लाख, बी ने लगाए हैं 1 लाख, तो दोनों के बीच में रेशियो हो गई 2:1। मैं ना बहुत आराम से पढ़ाना चाहता हूँ इस सेशन में, मैं आराम से, कोई जल्दी नहीं, मतलब एक एक चीज़ ना कॉन्सेप्ट वाले बता के, मैं जल्दबाजी में नहीं जाना चाहता, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। पहले हम ना क्या करते हैं बच्चे अकाउंट्स में, थोड़ा सा भी थ्योरी नहीं पढ़ते या कुछ, वो डायरेक्टली उस पर आते हैं। मैंने देखा गड़बड़ हो जाती है एंड तक। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़े से की टर्म्स यूज़ करो ना, चैप्टर मतलब एक बार पढ़ो मीनिंग ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर पे चलो, तो आपको ना एक बहुत बहुत बेनिफिट होता है, एक पता लग जाता है चैप्टर में है क्या। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड टू अ पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। गारंटी में बी गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो फर्म में ना एक पार्टनर गारंटी दे देता है। ए और बी ने सी को बोला यार सी तू आजा हमारे साथ बिजनेस का, हम तुझे गारंटी देते हैं कि तुझे इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसे बोलते हैं अ मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड टू अ पार्टनर। पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मैं मतलब आपको बताता हूँ। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स मीन्स एडजस्टमेंट्स मेड ईदर फॉर द एरर्स और ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म और फॉर द रॉन्ग और इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मेड इन द पास्ट ईयर और ईयर्स। समटाइम क्या होता है, अकाउंटेंट से कोई पिछले साल के प्रॉफिट देने में पार्टनर्स को कोई गलती हो जाती है। लेट अस अज्यूम 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, मैं उनका अकाउंटेंट हूँ, तो तीनों में जो प्रॉफिट स्प्लिट करना था वो मुझसे गलत हो गया। उसमें किसी पार्टनर की सैलरी देनी थी, मैं देना भूल गया। अब मैं ना एक ऐसा काम करता हूँ, इसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने एक सिंगल एंट्री पास करूँगा, रेक्टिफाइंग एंट्री।
कि जिससे जो मेरी एडजस्टमेंट गलत हुई है वो ठीक हो जाए, उसको मैं बोलूँगा एडजस्टमेंट मेड या एडजस्टमेंट टेबल बना के एक सिंगल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। अभी आप सब क्वेश्चन में समझोगे, कोई चक्कर नहीं है, इसीलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब ना यहाँ हमारे पास एक समरी बनाई हुई है चैप्टर की, थ्योरी वाइज की। एक एक चीज़ होती है ना, जैसे कैसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, एक एक चीज़ अकाउंट्स का। अब मैंने ना अकाउंट्स फैक्ट्री खोली है, मैं वैसे पढ़ाऊँगा कि एक एक चैप्टर में जड़ से जाके कि इस चैप्टर में ऐसा हो सकता है, इसका ये डीप पॉइंट है, ये है, ताकि कोई भी चीज़ मेरी छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ से पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये प्लीज़ ये भी समझ के चलिएगा, क्योंकि होता क्या है अकाउंट्स में एमसीक्यूज़ में कई बार यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि दो पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं बनी हुई तो कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Nature. A partnership firm has no separate legal entity apart from the partners constituting it. Partners, firm and firm name. The persons who have entered into the partnership with one another are individual called partners and collectively a firm. The name under which the business of the firm is carried on is called the firm name. Essential elements, main features or characteristics of partnership. There must be two or more persons, there must be an agreement, there must be a lawful business, there must be sharing profits of business, there must be a mutual agency. The business must be either carried on by all or any one of them acting for all. Partnership deed. The document containing the terms and conditions of the agreement between among the partners is known as the partnership deed. The partnership deed usually includes the following: name and address of the firm, name and address of all partners, date of commencement of partnership, capital to be contributed by each partner, whether interest is to be allowed on capitals, whether any partner is to be allowed salary, the profit sharing ratio, the duties of each partner, mode of settlement of accounts in case of retirement or death of a partner. एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ प्लीज़, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आप किसी भी चैप्टर को शुरू करो तो प्लीज़ उसके स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस की जो थ्योरी होती है ना, वो ज़रूर पढ़ के शुरू करना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पर मेरी बात समझ लो, एक चैप्टर में क्या है, उसके प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या है, बहुत 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 एडवांटेजियस होगा आपको। मैं सही बता रहा हूँ। अगर 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 किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना प्रैक्टिकल समझने में, किस प्रैक्टिकल समझ नहीं आता अकाउंट्स का, एक बार +2 में कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, प्लीज़ उसकी थ्योरी को शुरू कर पहले थोड़ा सा पढ़ो, फिर उसके बाद करो, फिर देखना, फिर मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पार्टनरशिप डीड. It facilitates functioning of the business. It is helpful in the settlement of all disputes arising among the partners. It helps to avoid misunderstandings amongst the partners. बिल्कुल ठीक है। 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना प्लीज़ डीड बनवाओ, पार्टनरशिप डीड बनवाओ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये प्रोविजंस वाला, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से सुनिए प्लीज़। प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। जो चीज़ें अब मैं पढ़ाऊँगा ना थ्योरी की,
वो अगर आप समझ जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल चैप्टर इतना टिप्स पे हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर्स एज्यूम करिए हैं ए, बी और सी, और तीनों के बीच में डीड नहीं बनी, ना यानी कि कोई ना एग्रीमेंट हुआ है ना डीड बनी है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स और चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। एक ना वर्ड होता है अलाउड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को प्लीज़। एक वर्ड होता है अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। एक वर्ड होता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है। तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कैपिटल पे, और ना ही कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स का मतलब जो पार्टनर अपने घर विड्रॉ करता है पैसा, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सेकंड, पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन फॉर द फर्म। ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अगर एक पॉइंट होता है इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज़ अलाउड ऑन द लोन्स एडवांस्ड बाय एनी पार्टनर। जब एक पार्टनर अगर साल के बीच में फर्म को लोन देता है, फर्म को थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो फर्म को लोन दे रहा है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। लेट अस अज्यूम 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। बी ने फर्म को लोन दिया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर फर्म को उसने कुछ लोन दिया। तो बी कहता है, और डीड नहीं बनी हुई, तो बी कहता है मुझे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। नहीं, फर्म सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। So interest at 6% per annum is allowed on the loans advanced by any partner. Profit or loss is distributed equally among the partners. तो ये कौन से प्रोविजंस हो गए एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डेट? इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और चार्ज ऑन ड्राइंग्स। Partner is not entitled to salary or remuneration for the work done for the firm. Interest at 6% per annum is allowed on the loans advanced by any partner. Profit or loss is distributed equally among the partners. I hope it is correct. डन यहाँ तक? ठीक है। हम अपने चैप्टर को ना आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे, माइंड में फिट आउट करेंगे, फिर पढ़ेंगे। मेरे पास जैसे जैसे टाइम होगा मैं लाइव क्लास आके करता चलूँगा। मेरी ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी हमेशा। आपको जब ठीक लगे आप आइए, अपना थोड़ा देखिए डीपली। मतलब जिन बच्चों को अकाउंट्स डीपली करनी है ना, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझ के थोड़ा सा स्लो, वो मेरे पास आओ, ताकि मैं पूरे सेशन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के इस तरह से करा सकूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं फिर आऊँगा और आपको फिर कराता चलूँगा। जस्ट नोटिफिकेशन ऑन रख लो, आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू बच्चा।